When I first heard this number, I honestly thought it had to be exaggerated, but it isn't. Delhi police has confirmed that 107 people have gone missing in just the first 15 days of 2026. Really let that sink in. More than 800 people in just 2 weeks from the national capital. What's really disturbing here is out of the 107 missing people, 509 are women and girls. That's nearly 2/3. This means every single day, on an average, 54 people are reported missing from Delhi. Now, breaking that number up for you, among the total missing are 191 children, minors. Of them, 146 are girls and 45 are boys. Adults make up the biggest group here. 616 adults went missing in the first half of January, of which 363 are women and 253 are men. Cops say that they are on the job, but around 70% are still missing. Of the 807, only 235 individuals have been traced back so far. Imagine as many as 572 people still remain unaccounted for. What's really staggering is these 807 cases has been reported in just the first 15 days of this year, just half a month. Official records show that in Delhi, on an average, nearly 2,000 people go missing every single month. The latest figures mirrors a long trend. For nearly 10 years, similar trend has been on in the national capital. In 2025 alone, Delhi has recorded over 24,000 missing persons cases, with women accounting for more than 60% of that total. A decade-long analysis shows that nearly 2.3 lakh people have gone missing in the last 10 years in Delhi, with 52,000 cases still unresolved. Operations like Operation Milap and AI-based tools have managed to help to some extent, but not really a lot. Success is not as much as we would expect from the police. Experts say there are many reasons. There's a huge migration to the city, so something like this can happen. Financial stress of many people, exploitation and trafficking, lack of awareness, overstretched policing. Whatever the reasons, families don't understand any of that. For them, all that matters and all that they know and see is that their loved ones are gone, that they're missing, and they have no contact. So, the uncomfortable truth, we keep calling Delhi the national capital, but with nearly 2,000 people vanishing every month from the national capital, is it really slowly becoming India's missing capital instead? सर पुलिस को हमने सेम डे फ़ोन किया, रात को बोले कि थाने में सुबह आना, सुबह फ़ोन किया, शाम को बताएंगे बच्चा है आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। पीसीआर पे कॉल किया, 112 पे आ जाएगा। जब हमें इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर हम नेक्स्ट डे सीधे खुद अपने आप हरिद्वार, पता लगा कि बच्चा हरिद्वार ट्रेन में देखा गया या ऐसी न्यूज़ मिली, तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ सीसीटीवी चेक किया, बच्चा दिखाई दिया। वहाँ से हमने इन्हें फ़ोन किया, मतलब 30 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये यहाँ से थर्ड को गए 3 दिन तक। फिर थर्ड को जाने के बाद इन्हें चाहते तो वहाँ लोकल होटल्स के कैमरे थे, कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते, ये चाहते तो उन कैमरों को चेक करते, पकड़ लेते। ये कहते रहे बच्चा आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में। आज बच्चे कुछ 5 महीने हो गया। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो ये कह रहे थे ना उस टाइम पे, बहुत बड़े भाषण दे रहे थे कि बच्चा 2 दिन में आ जाएगा, कहाँ है दरोगा जी वो? आप दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यहाँ से 10 तारीख को घर से सवेरे 7 बजे निकला और गया यहाँ से, घर से बोला कि हॉस्पिटल जाना है मुझे थोड़ा यहाँ कौशिक, और फिर इतना ही कह करके बोल करके निकला। फिर वो लौट करके आया नहीं। 2-2:30 बजे तक इंतज़ार किया, घर में पूछे तो बोली कि बर से नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। तो मैंने कहा खाना खाने तो आ जाना चाहिए, इतना कोई दूर तो है नहीं। फिर प्रयास करने लगे, ढूंढने लगे इधर उधर, कहीं पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन FIR करवाए, हाँ वो थाने गए, थाने में रिपोर्ट करवाए
और फिर ढूंढ ही रहे हैं जब से, अभी तक तो कोई पता ही नहीं है, 3 महीने होने को है। पुलिस से बातचीत हुई, पुलिस आई, पुलिस ने आपकी मदद की, ढूंढने की कोशिश की? हाँ, पुलिस बोले कि भाई हम अपना जो है कार्य कर रहे हैं, अपने हिसाब से ही करेंगे ना, हम आपको कहने से थोड़ी ऐसा करेंगे कि जो कि आप जो कहोगे वो करेंगे। ढूंढने का काम तो ठीक है, आपका दर्ज हो गया है FIR, और रिपोर्ट के मुताबिक मैं अपने हिसाब से कार्य कर रहा हूँ। अब क्या किए नहीं किए वो तो वही जाने, अपने हिसाब से क्या करते हैं नहीं करते हैं। जो मेरे हस्बैंड कई बार इधर मतलब थाने में भी कई बार गए, उन्होंने कई बार वो करा। एक ये मेरा भैया है छोटा, तो ये भी कई बार, दोनों जीजा साले काफ़ी मतलब इधर कोई लक्ष्मी सिंह है, उनके पास भी ये 5-6 बार गए, वो भी नहीं मिली ना। हमने नेताओं की सिफारिश भी लगाई, कहीं कुछ नहीं हुआ हमारा। दादी थाना में कई बार गई, खुद मैं भी गई हूँ 2-3 बार, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ये दिलासा देते रहे कि जी ढूंढ तो रहे हैं तुम्हारे बच्चे को। अरे जब तुम मेरे बच्चे को ढूंढ रहे हो तो आज मुझे कुछ बताओ तो सही। आज पाँचवा महीना चल गया है, इसमें कुछ तो क्लू मिलता कि बच्चा कहाँ है, कैसे है। और जब हमने बताया कि 30 सितंबर को मेरा बेटा हरिद्वार में देखा गया, वीडियो भी है हमारे पास, तो पुलिस उसके थ्रू वहाँ उत्तराखंड में भी तो जाकर देख सकती थी। अगर पुलिस चाहती ना तो मेरे बच्चे को वो हरिद्वार में ही पकड़ लेती। See, you know, one thing is consistent with all the parents here is that they say, अगर पुलिस चाहती तो कर सकती, पुलिस चाहती तो कर सकती. They have videos, they have links, they have traces, but the police is not aiding them.